اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے۔ اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو ہم سیٹیں چھینی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں، محمود خان چکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے اور GDA کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے، یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے، یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک عوام کی، جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہم سب سے بڑی پارٹی PTI اس وقت، اس منسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا، 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے۔ اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جعلی وزیر اعظم ہوگا۔ کسی بھی صورت میں ایک جعلی وزیر اعظم، ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے، جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عدالتوں سے، اب بھی ہم توقع رکھے ہیں کہ جو ہمارے کیسز صرف عدالت میں جا رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ عمر ایوب صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا، مولانا صاحب کا، شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے۔ میرے مرحوم والد صاحب اور گور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے، اسمبلی میں اکٹھے تھے، تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا
नहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मौलाना शिरानी साहब को हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग मुहिब वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो और मईशत तब मजबूत होगी कि वजीर आजम हाउस में एक मजबूत वजीर आजम और एक मजबूत पार्टी का वजीर आजम आए, ना कि 40 सीटों का रिग्ड इलेक्शन की बिसाखियों पे चलता हुआ एक वजीर आजम आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। 180 सीटें हमारे पास हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि फिल फॉर उनके जरिए उनके जो फॉर्म 47 है वो फिल फॉर इशू होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे मौजूद है। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 इस्लामाबाद सीटों पे स्टे दिया है और वो इस चीज की अक्कासी करता है कि जिस तरह के वो चीजें देख रहे हैं, धांधली उनको नजर आई। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मजीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और ये चीजें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहां से आई, पर रब्बुल इज्जत पे हमारा पूरा भरोसा है। लोगों के दिलों में रब ने ये चीज डाली कि इमरान खान साहब के लिए वो वोट डालें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मजीद लोग सामने आएंगे, रिजल्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में मजीद सामने आएंगे और हुकूमत मरकज में और चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। और यहां पे एक बार फिर मैं ये कहता चलूं, चाहे वो MQM ने जो डाका मारा है कराची की और सिंध की सीटों पे, पेशावर की हमारी 7-8 सीटें हैं जिसपे तैमूर खान है, जिसपे हमारे कामरान बंगिश है, हमारे कासिम है, बहुत सारे और साथी हमारे जानदाद खान है। हमारे यहाँ पे 3 सीटें इस्लामाबाद की सीटों पे डाका डाला गया है। 80 और सीटें हमारी जिन साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैरियट में हुई है, इन सारों के लिए हम लोग फाइट करेंगे। कानूनी रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है, हम लोग कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह ताला मजीद करेंगे और ये सीटें रिकवर करेंगे। मेरी आखिर में एक बार फिर अपने जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और ये जस्तजू हमारी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मुस्तकिम, एक मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जहां पे हमारी हुकूमत आते साथ ही हमारा पहला काम होगा कि अपने दिलों के राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की बाजियाबी, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज लाई साहब की, हमारी खवातीन जो अंदर पाबंद सलासल है उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने खानदान के पास वापस आएं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जो इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं उनका सब जेल बनाया गया है और जो उनके खिलाफ झूठे केस हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हमने खत्म करना है। बहुत शुक्रिया। अयूब साहब, ये फरमाइए कि आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से असद यासर साहब ने मुतालबा किया अदालती तहकीकात का, इल्जाम तो बराह रास्त उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लग रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से, तो वो कैसे गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराएंगे? और दूसरा, जो पहले से मौजूद केस है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान का, क्या PTI उसमें फरीक बनेगी ताकि इसको जो है वो लॉजिकल एंड तक इन्हीं सारे सबूतों के साथ पहुंचाया जा सके? पहला जुज आपका सवाल का एक है वो मैं दे दूंगा, फिर मैं बैरिस्टर गौर साहब से, चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कानूनी तौर पे। जहां तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है, बहुत एहतराम के साथ, जिस तरह कल भी हमने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज भी, कि क्योंकि रावलपिंडी के कमिश्नर ने उनका नाम लिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो कानून का तकाजा यह है, इंसाफ का तकाजा यह है कि वो उस इंक्वायरी का हिस्सा ना बने और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम बने। पर वो स्टेज 2 है, वो लॉन्ग टर्म में है।
इमीडिएट टर्म में हमारा ये है कि हमारे जो साथी जिनके खिलाफ ये रिगिंग का शवाहिद सामने आए हैं, ये फिल फॉर फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। बैरिस्टर साहब आप जी देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेंडोरा बक्स हम नहीं खोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि फॉर्म 45 को उठा करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में हमने पॉइंट आउट किए 80 सीट से, उनके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर करे। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके मुताबिक वही हमें आवाम का आवाज है और वही हमें कबूल है। वो आप पहले हमारे रिजल्ट वापस डिक्लेयर करें, फिर जो लूजर कैंडिडेट होगा वो आगे जाए और जहां पार्टी बनना चाहता है वो जाए। सिंपल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, अभी भी हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसी के अंदाज से आप चलो। आपने इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद को कायम दायम रखें, लेकिन आपने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब निशान छीना गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। उसके बाद शेख मोहम्मद साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन कहने पर हमने शिरानी रूप से इंतखाब खत्म किया है। क्या ये आपकी मेहरबानियां है जो आप नुक्ते निकाल करके लोगों को दूरी कर पे लाते हैं। आप बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? इलेक्शन कमीशन में आपके कितने MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉर्म जमा करवा दिए? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की जरा डिटेल बताइए। देखिए, जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, MOU साइन हुआ है, और इसके मुताबिक जो हमारे सारे MNAs है और MPAs है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो KPK में, चाहे वो पंजाब में, वो हम फाइल करेंगे। वो फाइल करना होता है विद इन 3 डेज। हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन 16 तारीख की जो नोटिफिकेशन आई है उसके 3 दिन के अंदर होता है। वो कल के दिन में जितने हमारे पास आए थे उस 16 के मुताबिक वो आज हमने जमा कराए। 50 MNA की पंजाब से बिलोंग करते हुए वो 50 MNA की आज हमने फर्स्ट गो में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वो हमारे कैंडिडेट्स के लेटर भी, CNIC भी, और उनके एफिडेविट कानून के मुताबिक जो जमा कराने थे वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वो दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इंशाल्लाह कल हम उनको देंगे, और 2 दिन में ये प्रोसेस उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कंप्लीट हो जाएगा। बाई MPAs की भी आई हमारे पास, अब कल हम जमा करेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि अभी हमने 50 MNAs की वो कर दी है। देता है ना, वो ये दिखाई देता है कि जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आज जो 2 जमात के साथ हुआ, दोबारा मुलाकात हो रही है, रिजर्व सीट्स को बचाने का ये मकसद है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो तरजीही फहरिस्त जमा करवाई जाती है उसकी डेट खत्म हो चुकी है। आप लॉ को भी समझते हैं कि ये मामला चलेगा कैसे? नहीं, देखो, जो ये कहते हैं ना तरजीही बुनियाद के, लेट्स सपोज अगर कोई 10 बंदे 15 बंदे इलेक्ट हो गए थे, जिस तरह KP में भी इसकी मिसालें, 2018 में भी ऐसा हुआ, इसके पहले वाले, अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी या पहले इवन उस पार्टी की वजूद ही नहीं थी, या वो पार्टी पहले नहीं कोई जमा करा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन जब पहले अपने अदाद शुमार देगा कि इस इलेक्शन में जितने लोग नोटिफाइड हो गए उसमें पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जो पार्टी आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन किया उसको स्ट्रेंथ से बाहर तो नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन अगर कल नोटिफाई करेगी कि ये 266 सीट्स है, इसमें से पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट हम ज्वाइन करेंगे हमारे, वो उसके भी एक किसी पार्टी की स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो बताएगा ये पार्टी है, इसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो वो हमारे MNA जो रिजर्व सीट है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसके बाद आता है। ये लीगल प्रोसेस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन किसी तरह से आपको देखो, इलेक्शन कमीशन हर बहाना ढूंढता रहा है हमसे, जिस तरीके से उन्होंने बल्ला छीन लिया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट केस वहां लेके गए, जिस तरीके से तोशाखाना का केस फाइल करवाया, जिस तरीके से तोशाखाना का ट्रायल चलवाया, तो वो तो हमें खदशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूं और हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि अब जब आवाम का मैंडेट उन्होंने देख लिया, अब तो ये अंदाजा करें कि देखे इनफ इज इनफ। अच्छा फरमाइएगा, आपने देखे इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, क्या आपकी कानूनी जो टीम है वो कमजोर है? क्या वजह है? ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। मानते हैं आवाम ने आपको मैंडेट दिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम भले का निशान छीना गया, लेकिन सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? मुल्क इस वक्त आपको IMF की तरफ
किस्तें वापस करनी है, मुख्तदर मईशत कुव्वतें देखिए जब कैसा- तक चाहते हैं तो कैसा चले। चल रहा है? देखिए, हम तो यही चाहते हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ने सही फरमाया कि हम आदमी इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए तो ही सारा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया और मैंडेट हमारा लेके किसी और को दिया गया। उसके बावजूद हम कहते हैं हम पार्लियामान जा रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे हाँ, अयूब मेरा खान ख्याल है साहब इनफ हमारे बस। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं।